Good morning class. Today I'll start with illustration number 4 in the cash book. You need to prepare the single column cash book again here. So firstly I'll start with the first one as on 1st of Feb balance in the shop. We have the opening balance of cash. As I said कि जो last month या last year का balance होता है उसके लिए हम लिखते हैं to balance brought down. It is of rupee 40,000. I am preparing only by using some short columns. जो मैंने ledger folio और voucher number है उसको नहीं लिखा, but you have to write down the form as per the format. The columns also related to ledger folio and the voucher numbers. Next we have bought goods as on 5th. जब आप goods को purchase करेंगे तो मैंने आपको simply cash book के लिए दो ही concept बताए हैं. पैसा आएगा तो डेबिट में और जाएगा तो क्रेडिट में. सो हेयर यू बॉट गुड्स. अब अगर आप गुड्स को परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली आपका पैसा जाएगा. सो एज ऑन 5th of Feb यू विल राइट हेयर बाय परचेज अकाउंट. इट इज़ ऑफ रुपी 30,000. एंड वन मोर थिंग, जब आप परचेज करेंगे तो आप GST उसके ऊपर पे करेंगे. सो वी नीड टू राइट हेयर इनपुट CGST ऑल्सो 6%, 1,800, and input SGST 1,800. Next we have sold goods at the for rupee 45,000. Again we have the GST, CGST and SGST on such goods. तो जब आप सेल्स करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा as on 7th of Feb to sales account. और सेल्स पे हम GST कलेक्ट करेंगे. So you will write to output CGST and to output SGST. The sales is of rupee 45,000. So 45,000 के ऊपर 6% से GST 2,700. The next term we have as on 10th paid to Yashpal and Sons on account. You paid to Yashpal as rupee 6,000. So as on 10th when we are paying cash by Yashpal and Sons, उसको पे करने से हमारे पास से कैश आएगा इन द क्रेडिट साइड एज रुपीज 6,000. नेक्स्ट इज यू रिसीव्ड फ्रॉम राहुल ब्रदर्स एंड डिस्काउंट अलाउड. सो व्हेन यू आर पेइंग टू यशपाल एंड सन्स योर कैश गोज आउट बाय 13,750. नाउ यू रिसीव डिस्काउंट हेयर. सो हमारी इसकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी यशपाल एंड सन्स टू डिस्काउंट रिसीव एज रुपी 250. नेक्स्ट वी हैव एज ऑन 28 पेड रेंट फॉर गोडाउन और जिसके ऊपर हमने GST पे किया. एज ऑन 28 यू मे राइट हेयर बाय रेंट अकाउंट. आपने रेंट पे किया 10,000 रुपीज़ का और इसके ऊपर हम GST पे करेंगे तो इनपुट CGST एज रुपी 600 एंड इनपुट SGST इज ऑल्सो टू बी चार्ज एज रुपी 600. द लास्ट इज पेड टू मनोज इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ रुपी 8,000. मनोज को मुझे 8,000 देने थे. फुल सेटलमेंट मतलब मुझे उसको डिस्काउंट लेस करके मैंने उसको पे किया. मींस मैंने उसको सिर्फ 7,600 पे किया. तो मनोज को जब मैंने पे किया एज ऑन 28 राइट हेयर बाय मनोज यू पेड ओनली 7,600. 400 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ. सो अगेन इन द जर्नल प्रॉपर राइट हेयर मनोज टू डिस्काउंट रिसीव्ड एज रुपी 400. So all the transactions are over here. Then you have to find out the balance by doing the balancing. Total the debit side it is 1,07,050 and the credit side total is 17,650. Obviously the credit side is less here. So as on the last day of the month, write here by balance, carry down and write down the balancing figure. The difference of these two account is 27,400 and close the line. डबल लाइन बाय क्लोजिंग द डबल लाइन इट इज़ नेसेसरी क्योंकि यहाँ से क्लियर होता है कि आपके अकाउंट्स क्लोज हो गए. सो दैट्स ऑल अबाउट दिस इलस्ट्रेशन. नाउ ट्राई टू सॉर्ट आउट इलस्ट्रेशन नंबर 5 बिकॉज इट इज़ सिमिलर एज वी डिस्कस्ड इन इलस्ट्रेशन नंबर 4. Next type of cash book is double column cash book. Here we are preparing two columns related to the cash book. अब टू कॉलम्स में सबसे पहला हम करेंगे when we are preparing the cash book with cash and bank column. Now we have two columns. One is related to cash and the second is related to bank. So उसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी. सबसे पहले जैसे कि आपका ओपनिंग बैलेंसेस है. Before that, a bank account is a personal column, so the rule is debit the receiver and the credit the giver.
फिर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं प्रीवियस ईयर मंथ के या प्रीवियस ईयर के लिए, तो हम उसके लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे कैश और बैंक कॉलम में. Then we have the contra entry. Remember, the contra entry are such kind of entries. By passing such entry, two accounts are affected. One is the cash and the second is the bank. तो वो कौन सी हैं? One is cash deposited into bank. When you deposit your money into the bank, तो आपके पास से कैश कम होगा और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा. तो ये हमने जर्नल में की थी. द एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. सो इस एंट्री की पोस्टिंग आपकी कैश बुक के दोनों कॉलम्स में होगी. How? Look at this please. Deposited into bank और लिखा है सिर्फ banked. दोनों का मीनिंग सेम है. मीन्स यू आर डिपोजिटिंग योर मनी इनटू द बैंक. द जर्नल एंट्री फॉर दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. अब मैं बना रही हूँ कैश बुक विद डबल कॉलम कैश एंड बैंक. दिस इज कैश कॉलम, this is bank column. Cash, bank in both the sides of cash book. ये credit side है, ये debit side है आपकी किसकी? कैश बुक की. फॉर एग्जाम्पल द अमाउंट इज ऑफ ₹2000 जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किया. अब जब आप इसको लिख रहे हो जिसमें कैश और बैंक दोनों अकाउंट आते हैं, वो आपकी होती है कॉन्ट्रा एंट्री. एंड इन द बिगनिंग आई सेड टू यू कि जिसका भी हम अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नाम कभी भी नहीं आता. मतलब अगर आप कैश कॉलम में अमाउंट लिखोगे तो उसमें बैंक का नाम आएगा, और अगर बैंक कॉलम में अमाउंट लिखोगे तो कैश का नाम आएगा. कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, बैंक में बैंक का नाम नहीं आएगा. लाइक हाउ दिस इज कि व्हेन वी आर डिपॉजिटिंग मनी, बैंक बैलेंस मेरा इंक्रीज हो गया और कैश बैलेंस मेरा डिक्रीज हो गया. मतलब बैंक में पैसा आया और कैश से पैसा गया. तो पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में. आया कहाँ पर है? बैंक में. तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन बैंक कॉलम. और जाएगा कहाँ से? कैश से. तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट एंड अमाउंट इज विड्रॉन फ्रॉम द कैश कॉलम. दिस इज द कॉन्ट्रा एंट्री. इट इज कंपल्सरी टू डिनोट दिस एंट्री बाय सी. वंस अगेन, जब मैंने पैसा डिपॉजिट किया तो बैंक में पैसा आया, पैसा आता है तो डेबिट में, तो बैंक में आया तो बैंक के डेबिट में पैसा डाल दिया 2000 बाय राइटिंग टू कैश, क्योंकि कैश आया है बैंक में और कैश मेरा कम हो गया बिकॉज उस पैसे को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. तो कैश अगर कम होगा तो क्रेडिट से यू मे राइट बाय बैंक एंड विड्रॉन फ्रॉम द कैश कॉलम. सेकेंड एंट्री इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रा विड्रॉन फ्रॉम बैंक या फिर विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़. अब इसी एंट्री को रिवर्स करेंगे हम. जब आप बैंक से पैसा निकालोगे किसी भी रीज़न के लिए ऑफिस यूज़ के लिए, तो आपके पास कैश बैलेंस इंक्रीज होगा. तो जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सपोज इट इज़ 5000. तो मतलब मेरे पास कैश हो गया इंक्रीज और बैंक हो गया डिक्रीज, क्योंकि मैंने कैश में पैसा निकाला है, बैंक बैलेंस मेरा कम हो गया. हाउ वी विल रिकॉर्ड दिस नाउ? सो लुक एट दिस. कैश इंक्रीज्ड बिकॉज कैश अब आया है, बैंक विड्रॉ हो गया, तो कैश इंक्रीज होगा. मतलब कैश में इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड में यू मे राइट टू बैंक. एज आई सेड कैश में कैश का नाम नहीं लिखा जाएगा. सो कैश इंक्रीज बाय 5000. अब बैंक बैलेंस आपका रिड्यूस होगा तो रिड्यूस कहाँ होगा? क्रेडिट साइड में. राइट हेयर बाय कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक अगर रिड्यूस करना है तो बैंक का नाम नहीं लिखेंगे, हम रीज़न लिखेंगे कैश रिड्यूस हुआ इसलिए मेरा, मतलब कैश मैंने निकाला इसलिए मेरा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो गया. सो दिस इज अबाउट द कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन द टू अकाउंट्स कैश एंड बैंक बोथ आर अफेक्टेड बाय दिस. नेक्स्ट टर्म वी हैव रिसिप्ट ऑफ चेक इन बैंक ड्राफ्ट. व्हेन यू रिसीव्ड अ चेक, only it is mentioned ki that you received a check. So in this situation that check is in my hand. जब तक आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला जाएगा कि द चेक रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तब तक आप उसको सिर्फ चेक इन हैंड ही कंसीडर करोगे. लाइक दिस कि यू रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बनर्जी, सो द जर्नल एंट्री इज चेक इन हैंड टू बनर्जी. जब तक ये चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा, इसकी एंट्री को हम कैश बुक में कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे. When it is mentioned कि this check is deposited into bank, then you will deposit the check in the bank on that date. For example, 15th of Feb को हमने एक चेक रिसीव किया गुरप्रीत से 25,000 का.
इस चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट किया 20th फेब को, रिसीव किया था 15th फेब को। तो 15th फेब को अपने जर्नल प्रॉपर में आप एंट्री पास आउट करोगे, चेक इन हैंड डेबिट टू गुरप्रीत 25,000. Now, as on 20th you deposit this check into bank. So as on 20th in your cash book, you will deposit the check writing to check in hand as rupee 25,000 in the bank column. Because अब जो भी बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होंगी वो बैंक के कॉलम में ही रिकॉर्ड होंगी. अंडरस्टूड आई थिंक. जो चेक है अगर हमने पहली डेट पर रिसीव किया और डिपॉजिट उसको बाद में किया तो पहले आप उसको जर्नल प्रॉपर में लिखोगे चेक इन हैंड टू गुरप्रीत, और जिस दिन आप उसको डिपॉजिट करोगे उस दिन आप उसको कैश बुक में लिखोगे. सपोज़ यहाँ पर होता कि 15 को मैंने चेक लिखा और 15 को ही डिपॉजिट कर दिया, तो हम 15 को डायरेक्ट कैश बुक में डिपॉजिट करते टू गुरप्रीत के नाम से बैंक के कॉलम में 25,000. आई होप द डिफरेंस इज क्लियर नाउ. देन वी हैव द पेमेंट्स बाय चेक. अगर आप कोई भी पेमेंट चेक से करोगे तो ऑब्वियसली आपका क्रेडिट साइड में बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव डिसऑनर ऑफ ए चेक. डिसऑनर का मैंने मीनिंग पहले भी बताया था कि कोई भी पर्सन मुझे एक चेक बना के देता है बट उसके अकाउंट में एक्चुअली उतना पैसा है ही नहीं, तो वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है. तो जहाँ पर हमने उस चेक को डाल रखा है जब हमें मिला होगा तो ऑब्वियसली हमने उसको डेबिट में रिकॉर्ड किया होगा. अब जब वो बाउंस हो गया तो हमें उसको वो रिटर्न करना है, इसलिए हम उसको क्रेडिट साइड में अपोजिट एंट्री पास आउट करके उसको रिकॉर्ड कर देंगे. नेक्स्ट वी हैव डिस्काउंट. As again I am saying there are two columns only, one is for the cash, second is for the bank. तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री सिर्फ आपकी जर्नल प्रॉपर में होंगी. अबाउट दिस illustration number 6 now. This illustration we will discuss in the next video because सबसे पहले आप सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना सीखिए, उसके बाद ये जो मैंने बेसिक टर्म्स आपको सिखाई हैं अभी, ये बहुत 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 दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू कैश बुक. अगर आपको ये एक्सप्लेन हो गई या ये समझ आ गई then there will be no problem in the further question because the rest questions are totally based on such transactions. So before starting the question, it is compulsory for you to understand the concepts related to double column cash book with cash and bank column. The next thing we will discuss in the next video. Up to that, take care and watch the video very very carefully. Thank you so much and take care of yourself.